Hello, my dear students. This is my third video for the MCQs, and this very important, very interesting video. I will give the discussion with all thorough explanation of not only of the correct answer but also of the all options. And these questions are usually asked in the examination. So let us start. They are the 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं आपसे आगे भी। फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट स्टैटिक ट्रेमर्स आर प्रेजेंट इन। तो आप सोचने लगिए कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है स्टैटिक ट्रेमर्स का। पहले से सोच लीजिए विदाउट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस। दीज आर द ऑप्शंस: एपिलेप्सी, सेरेब्रल सिंड्रोम, कोरिया, पार्किंसनिज्म। ये कोरिया पार्किंसन बेसल गैंग्लिया के लीजन्स हैं। तो करेक्ट आंसर उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा, आई एम श्योर, एंड आंसर इज पार्किंसनिज्म। Explanation, I will explain. In Parkinsonism, the tremors are present in the resting condition and are known as the static or resting tremors. When person starts work, the tremors are disappeared or reduced. In worse condition, the tremors become pin rolling or drum beaten tremors, especially in the hands. That's why resting condition में present है और वर्क करने में डिसअपियर हो जाते हैं, तो इसलिए ये स्टैटिक ट्रेमर्स है पार्किंसनिज्म में। लेकिन और ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेरेब्रल सिंड्रोम में कंडीशन इज रिवर्स। द ट्रेमर्स आर नोन एज इंटेंशन ट्रेमर्स and are usually absent in the resting condition, but when person starts work or has intention to do the work, the tremors appear. Epilepsy में the tremors are usually not directly present but may appear as the side effect of anti-epileptic drug like valproate etc. फोर्थ, कोरिया जो डांसिंग लाइन मूवमेंट्स होता है, रैपिड अनकंट्रोलेबल ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया, मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेमर्स। ट्रेमर्स नहीं होते हैं, उसमें मूवमेंट्स होते हैं। दे आर नॉट रिदमिक एंड प्रेडिक्टेबल व्हाइल ट्रेमर्स आर रिदमिक इन द नेचर। सो करेक्ट आंसर पार्किंसनिज्म है। सेकंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप पहले से सोचने लगिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऑप्शंस आर ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आंसर बताऊंगा, आप पहले सोच के रखिए क्या आंसर हो सकता है। आंसर इज ऑक्सीटोसिन, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज synthesized in the hypothalamus along with the ADH antithyroid hormone or vasopressin and then come into the posterior pituitary gland, stored there and released from posterior pituitary gland whenever is required. तो ये पोस्टर पिट्यूटरी से, बाकी सब के सब एंटी पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। रेस्ट ऑल थ्री हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन along with other hormones like adrenocorticotropic hormone ACTH, follicle stimulating hormone which affect the gratian follicle FSH, and luteinizing hormone LH. All the six hormones are secreted from the anterior pituitary gland. कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर दे सकते हैं आराम से। Third question is, in myasthenia gravis disease, the muscle weakness occurs due to what is the cause of myasthenia gravis? These are the option: reduced acetylcholine synthesis, synthesis कम है acetylcholine की, या ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, या ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है acetylcholine रिसेप्टर्स का, या ओवर यूज ऑफ acetylcholine रिसेप्टर्स। क्या करेक्ट आंसर है, ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मालूम होगा, लेकिन मैं सब चीजें डिस्कस करूंगा आपसे। आंसर इज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑटो एंटीबॉडीज दे आर डेवलप्ड अगेंस्ट द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स located on the post junctional membrane and start destroying the acetylcholine receptors post junctional muscular membrane पे। So very less receptors are remaining and very less acetylcholine is attached to their receptors, which results in development of very weak action potential on the muscles and then result into myasthenia gravis and grave disease of grave muscle weakness. It result the severe muscles of weakness. myasthenia gravis का मतलब होता है grave severe weakness muscles, especially muscles the limbs, ocular muscles, upper eyelid, तो अपर eyelid उठ नहीं पाती, टोसिस भी हो जाती है। जॉ मसल वीक है, इसलिए खाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जॉस को चलाने में, मैस्टिकेशन में बहुत डिफिकल्टी होती है।
पर्सन बहुत जल्दी थक जाता है, इवन खाना खाते में थक जाता है। एंड समटाइम्स इट may affect respiratory muscles which may be fatal and sometimes may result into the death। ये माइस्थेनिक हो गया। नाइटमेयर इन सीन, नाइटमेयर जो जो पर्सन ड्रीम करता है और उसमें कुछ खतरनाक टाइप की वो ड्रीम देखता है या घबरा जाता है, डर जाता है, वो नाइटमेयर कहलाते हैं। तो नाइटमेयर किस कंडीशन में होगी? जिसमें पर्सन ड्रीम करेगा। तो यही सोचना है आपको कि आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, या स्टेज वन एनआरईएम स्लीप, या स्टेज टू एनआरईएम स्लीप, या स्टेज थ्री एनआरईएम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स की स्टेजेस हैं, या आरईएम स्लीप है, किस में नाइटमेयर होगा? तो आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम कर रहा है तो आरईएम स्लीप ही ऐसी होती है जिसमें पर्सन ड्रीम करता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एक्सप्लेनेशन क्या है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज ए यूनिक फेज ऑफ मेमेलियन स्लीप characterized by rapid eye movements, dreaming, nightmares, and hypotonia of all body muscles. Hypotonia. Though here the sleep is deep, but mind is active. तो ये इसी वजह से इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। माइंड एक्टिव है बट डीप स्लीप है। एज द फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटीज टू वेकिंग स्टेट, जैसे पर्सन जाग रहा होता है वैसी कंडीशन ही, पल्स रेट भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, जबकि डीप स्लीप में पल्स रेट वगैरह कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ड्रीम कर रहा है पर्सन तो ये ज्यादा होता है। एंड इंक्लूडिंग रैपिड लो वोल्टेज डिसिंक्रोनाइज ब्रेन वेव, जैसे पर्सन जागता है या सोचता है तब ये डिसिंक्रोनाइज वेव्स होती है, जबकि जब पर्सन के बिल्कुल रिलैक्स होता है तो सिंक्रोनाइज वेव्स होती है। तो hence it is also known as the paradoxical sleep, deep but mind is active, sometimes also known as the desynchronized sleep waves, desynchronized sleep। फिफ्थ एमसीक्यू, इंटेंशन ट्रेमर्स आर डायग्नोस फीचर ऑफ। ये तो पहले भी हम जो आपको फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा चेंज है। पार्किंसन डिजीज, सेरेब्रल डिसफंक्शनिंग, हाइपरथायराइडिज्म, एक्सट्रीम नर्वसिस, चारों में ट्रेमर्स हो सकते हैं। तो इंटेंशन ट्रेमर्स किस में है? मालूम ही है आपको, सेरेब्रल डिसफंक्शनिंग। करेक्ट आंसर इज सेरेब्रल डिसफंक्शनिंग, or cerebral syndrome where the tremors are not present at rest but appear when the person starts work or has intention to do. That's why known as the intention tremors. And these are coarse tremors. बहुत coarse tremors होते हैं, बहुत क्लियर कट दिखाई पड़ रहे होते हैं। पार्किंसनिज्म में tremors are at rest and disappeared, are reduced when the person works, and these are called the resting or static or staccato tremors। When severe, these become pin rolling or drum beating tremors, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हाइपरथायराइडिज्म में भी ट्रेमर्स होते हैं, फाइन ट्रेमर्स एंड एक्शन ट्रेमर्स है हाइपरथायराइडिज्म में, फाइन ट्रेमर्स। एक्सट्रीम नर्वसनेस में फाइन भी हो सकते हैं, कोर्स भी हो सकते हैं, रेस्टिंग भी हो सकते हैं, एक्शन ट्रेमर्स हो सकते हैं। लेकिन जो इंटेंशन ट्रेमर्स हैं वो सेरेब्रल डिसफंक्शनिंग में ही का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है। Next MCQ is processing of short-term memory to permanent storage of long-term memory is done by consolidation in शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो रही है, परमानेंटली बन रही है, एनाटॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, बार बार रिहर्स कर रहे हैं, साइनेप्सिस बढ़ रहे हैं और कंसोलिडेट होती जा रही है मेमोरी और स्टोर हो जा रही है स्टोरेज बिन्स में। तो ये कहाँ पर स्टोर होती है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, या हिप्पोकैम्पस में, या नियोकॉर्टेक्स में, या एमिगडाला में। लॉन्ग टर्म मेमोरी कई सालों तक याद रह सकती, कई सालों के बाद भी बचपन की चीज भी आपको याद है, कई साल तक याद है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक याद रहती है। लेकिन जब ये परमानेंट बन जाती है बाय रिहर्स करने पर, बार बार बताने पर या रिहर्स करने पर, और कंसोलिडेट हो जाती है, तो वो कहाँ पर होती है? आई एम श्योर कि आप लोगों को आंसर मालूम होना चाहिए। आंसर इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है और कंसोलिडेशन भी होता है, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो थैलेमस उसको सर्च करके स्टोरेज बिन से निकालता है और आपको वो चीज याद आ जाती है। Explanation: Hippocampus plays an important role in consolidation of memory, so that short-term memory is converted into long-term memory, which is permanently stored in the hippocampus, as well as reinforced by an emotional state that is associated with learning and experience। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? एक ऑप्शन था, दिस इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, प्रीफ्रंटल, एंड हैज रोल इन द हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लाइक सीट ऑफ इंटेलिजेंस है तो लाइक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन, एंड मेंटेनिंग सोशल एप्रोप्रिएटनेस, एंड रेगुलेटिंग इमोशंस एटसेट्रा।
तीसरा ऑप्शन था न्यो कॉर्टेक्स और न्योपेलियम। दिस इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, पर्टिकुलर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वो न्यू कॉर्टेक्स होता है जिसमें जिसमें 6 लेयर्स होती हैं, सिक्स ऑल 6 लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस including sensation, action, cognition, consciousness, and also responsible for language, thought, behavior, learning, memory, reasoning, etc. Fourth option था amygdala. Amygdala is a part of limbic system. So ये emotion से attach है. It is responsible for the processing and regulating emotions like fear and anxiety, and triggering for the fight and flight response, also for the emotional memory, social cognition, influencing behavior like aggression and learned association. ये सारे ऑप्शन के फंक्शन हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए, खाली हिप्पोकैम्पस पे नहीं, सीट ऑफ इंटेलिजेंस आपसे पूछ लें, या न्योकॉर्टेक्स के बारे में पूछ लें, या एमिगडाला, तो आप आंसर दे सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके। यानी सिर्फ 10 MCQ क्वेश्चन है लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी बहुत अच्छी। 10 चौक 40, यानी 40 क्वेश्चंस की नॉलेज आपको इसी वीडियो में हो जाएगी। 7th MCQ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं या सही आंसर नहीं दे पाते। द पर्सन विद नो RH एंटीजन ऑन देयर RBC मेम्ब्रेन आर नोन एज RH पॉजिटिव पर्सन कहते हैं उन्हें, या RH निगेटिव कहते हैं, या RH न्यूट्रल कहते हैं, या RH नल पर्सन कहते हैं। यूजली 70-80%, 90% स्टूडेंट्स इसका रॉन्ग आंसर देते हैं। करेक्ट आंसर है RH नल पर्सन, जबकि आपके दिमाग में आता है RH निगेटिव। RH नल पर्सन कुछ लोगों ने कम सुना भी होगा, तो इनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। RH null persons are the rarest group in the world with no any RH antigen, जो क्वेश्चन दिया हुआ है no RH antigen on membrane of their RBCs, their number are about only 1 in the 6 million population, इतना रेयर है। That's why they are also known as the persons of golden blood, क्योंकि बहुत रेयरली मिलता है तो गोल्डन ब्लड के पर्सन कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी रेयर अवेलेबिलिटी ऑफ देयर ब्लड। तो फिर निगेटिव क्यों नहीं है? RH पॉजिटिव पर्सन वो हैं जिनके RBC मेम्ब्रेन पे RH एंटीजन D होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर अबाउट 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये RH एंटीजन 6 टाइप्स का है, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E, स्मॉल e। तो कैपिटल D अगर है तो वो RH पॉजिटिव, और ये पांचों में से कोई भी एक है तो RH नेगेटिव है, कैपिटल D नहीं है, और कोई भी नहीं है तो RH नल है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 85% RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव पर्सन अबाउट 15%, तो ऑलमोस्ट 100% देखिए तो हो गया। ये रेरेस्ट ग्रुप है RH नल पर्सन, बिल्कुल नेग्लेजिबल टाइप का। तो RH नेगेटिव पर्सन आर अबाउट 15% पॉपुलेशन हु डू नॉट हैव RH एंटीजन D। ऐसा नहीं तो कि RH एंटीजन नहीं होता, RH एंटीजन होता है बट RH एंटीजन D नहीं होता on their RBC membrane, but will have any one RH antigen out of 5 other types of RH antigens. स्मॉल d हो सकता है, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। इन पांच में से कोई ना कोई जरूर होगा, और अगर 6 में से कोई नहीं होता देन दे आर RH नल। एक RH न्यूट्रल का ऑप्शन था, देयर नो पर्सन लाइक RH न्यूट्रल। RH न्यूट्रल कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन को कंफ्यूज कराने के लिए या पूरा करने के लिए RH न्यूट्रल दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और बता दें कि AB निगेटिव ब्लड ग्रुप को हम लोग रेयरेस्ट कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो RH नल इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। चूंकि लेकिन भाई इतना कम मिलता है इसलिए AB निगेटिव को ही रेस्ट कहते हैं। दूसरी बात, ब्लड ग्रुप O निगेटिव सेट टू बी यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, बट एक्चुअली RH नल और एब्सोल्यूट यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इस पे कोई भी RH एंटीजन नहीं है। जबकि ब्लड ग्रुप O में एंटीजन D के अलावा बाकी पांचों में से कोई एक होगा तो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप एब्सोल्युटली RH नल होता है, बट चूंकि अवेलेबल नहीं होता बहुत मुश्किल से, इसलिए RH निगेटिव ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर आप इसको याद रखिए। नाउ inability to maintain a balanced standing position with feet keeping close together and eyes closed in an important diagnostic sign known as, दोनों पैरों को मिला लिया, आंखें बंद करी, तो इनएबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस स्टैंडिंग पोजीशन, पर्सन मेंटेन नहीं कर पाएगा बैलेंस और एक तरफ को गिर जाएगा। ये साइन, इंपॉर्टेंट साइन क्या कहते हैं इसको और किस कंडीशन में है? ये क्या, ये डिसडायलोकोकानेजिया है, विच इज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ सेरेब्रल अटैक्सिया।
R, is it dysmetria, which is also an important sign of cerebral ataxia? Or it is Romberg sign, which is an important sign of sensory ataxia? Or it is asteognosis, an important sign of lesion on sensory activation area 5? मैं चारों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। करेक्ट आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज Romberg sign, an important diagnostic sign of sensory ataxia. Romberg sign is an important diagnostic sign of sensory ataxia. सेंसरी ataxia क्या मतलब है? जब पोजीशन सेंस लॉस हो जाती है, जैसे टेविस डोर्सलिस। टेविस डोर्सलिस वो बीमारी है जिसमें स्पाइनल जो सेगमेंट्स हैं उनके डॉर्सम डॉर्सल कॉलम वो डैमेज होने लगते हैं, और वहीं से जो ट्रैक्स निकल रहे हैं, ट्रैक्स वहां से या नर्व जाती हैं जिसमें सेंसेशन होते हैं, तो पोजीशन सेंस लॉस हो जाती है। न्यूरोसिस पोजीशन सेंस लॉस हो जाती है बॉडी की। पर्सन हैज नो सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ हिज लेग्स एंड ऑफ ग्राउंड ऑन क्लोजिंग आईज एंड फॉल टू वन साइड। उसे पता नहीं उसके पैर कहाँ पर है, जमीन कहाँ पर है, और एक तरफ गिरने लगता है आंखें क्लोज करने पर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि सेंस, ये रोम्बस साइन ही एक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको पोजीशन सेंस लॉस होती है, तो वो चलता है तो बहुत ज्यादा पैर को ऊपर उठाता है और पैर को बहुत फोर्सफुली जमीन पे डालता पटकता है, जिसे कहते हैं स्टैंप, स्टैंप लगा रहा है, तो उसे स्टैंपिंग गेट कहते हैं। बहुत हाई ऊपर उठाया और बहुत फोर्सफुली जमीन पर उसको अपने कदम को लगाया। तो स्टैंपिंग गेट एंड रोम्बस साइन, देयर आर इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन ऑफ सेंसरी एटेक्सिया। दूसरी तरह की एटेक्सिया होती है सेरेब्रल एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट लॉस हो गया। तो dysdiadochokinesia is inability to perform rapid alternate supination pronation movements of the hands। जल्दी जल्दी हाथों को प्रोनेशन और सुपिनेशन कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सेरेब्रम डैमेज हो गया। तो सेरेब्रल एटेक्सिया में डिसडायोकानेसिया और सेंसरी एटेक्सिया में रोम्बस साइन, दे आर द डायग्नोस्टिक साइंस। एक और है सेरेब्रल डैमेज में इनएबिलिटी टू कंट्रोल द स्पीड पावर एंड डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट, दिस नॉट द डिस्मेट्रिया। जैसे जब खाना खा रहा है तो हाथ जो है मुंह तक नहीं आ पा रहा है, कभी मुंह के आसपास में निकल जा रहा है, कभी पीछे निकल जा रहा है। या फिंगर नोज टिप टेस्ट, फिंगर से नोज को टच करना मुश्किल हो जाता है उसको। तो इनएबिलिटी टू कंट्रोल स्पीड पावर एंड डिस्टेंस, दैट इज नॉट द डिस्मेट्रिया। एक और ऑप्शन था एस्टिग्नोसिस और टेक्टाइल एग्नोसिया। ये क्या है? इट इज द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स बाय टचिंग। छू कर किसी चीज को पहचानना, जैसे कि सिक्का है या पेन है या कोई और ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर मुश्किल हो जाए देन इट इज नोन एज एस्टिग्नोसिस। और छू कर पहचानने को कहते हैं स्टियोग्नोसिस। तो इट इज एस्टिग्नोसिस और टेक्टाइल एग्नोसिया। ये कब होता है? व्हेन सेंसरी एसोसिएशन एरिया 5 लोकेटेड इन द parietal lobe is damaged। parietal lobe में मेनली प्राइमरी सेंसरी एरिया 3, 2 एंड 1 होता है, जहाँ पे सारे सेंसेशन वहां पहुंचते हैं और पर्सन पहचानता है कि ये सेंसेशन है और किस जगह से आ रहे हैं। लेकिन 3, 2 प्राइम सेंसरी के अलावा दो एसोसिएशन एरिया है कि एरिया 5 है उसके बाद, ये जो के स्टिग्नोसिस यानी टेक्टाइल आइडेंटिफिकेशन के लिए है। अगर वो डैमेज हुआ है तो अपोजिट हाफ में एस्टिग्नोसिस हो जाएगी, छू कर नहीं पहचान पाएगा। एक और एरिया होता है यहाँ पर, तो ये डिस्कस कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। 5 के बाद आगे 7 एरिया भी होता है। 7 एरिया जो है, आंखें बंद करके भी आप पता लगाते हैं आपकी बॉडी इमेज कहाँ पर है। आप अपना हाथ पैर सब छू सकते हैं आंखें बंद करके भी। तो एरिया 7 इज फॉर द बॉडी इमेज। एरिया 7 अगर लॉस हो जाए तो अपोजिट हाफ की बॉडी इमेज लॉस हो जाएगी आंखें बंद करके। आंखें बंद करके पर्सन नहीं बता पाएगा कि उसका अपोजिट साइड का हाथ कहाँ है पैर कहाँ है। तो दैट इज नोन एज नेग्लेक्ट ऑफ द बॉडी इमेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक रॉन्ग है। तो ये यूनिट ब्लेडर के बारे में है। एटॉनिक ब्लेडर एक कहलाता है, इट इज फाउंड इन द स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक द फर्स्ट स्टेज आफ्टर क्रशिंग or transection of spinal cord and shows retention of the urine and overflow incontinence. Second bladder होता है automatic bladder, which is found in the second or recovery stage after complete transection of spinal cord above sacral segments and shows lack of voluntary control on maturation with urinary incontinence. Third is the uninhibited neurogenic bladder, abnormal है third, found in the injury of some parts of brainstem or midbrain, resulting in the frequent and uncontrollable micturition. And fourth is nocturnal micturition is shown in the children below 3 years of age
and is due to complete myelination of motor nerve fibers unibrilator। तो इसमें से आपको समझ गए होंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट का आंसर है ये। नॉक्टर्न micturition is shown in the children below 3 years of age is due to complete myelination of motor nerve fibers of unibrilator। ये complete myelination नहीं है, बल्कि nocturnal micturition is due to incomplete myelination। तो that is the wrong statement and correct answer। एक्सप्लेन करते हैं चारों चीजों को। Nocturnal micturition, also known as the enuresis or bedwetting, is shown in the children below 3 years of age and is due to incomplete myelination of motor nerve fibers unibrilator। और अगर 3 साल से ऊपर भी अगर ये प्रॉब्लम है, जब माइलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो म्यूचुरेशन रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगी। 3 साल से ऊपर भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिर एबनॉर्मल है, जैसे साइकोलॉजिकल हो सकती है या लंबोसेक्रल जो स्पाइनल सेगमेंट्स है या वर्टिब्रल डिफेक्ट्स अगर हो गया है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। 7-8 साल तक भी हो सकती है, दैट इज एबनॉर्मल। सेकंड ऑप्शन था एटोनिक ब्लेडर, यानी टोन खत्म हो गई ब्लेडर की। इट इज फाउंड द स्पाइनल शॉक, ये फर्स्ट 3 वीक्स की फर्स्ट स्टेज होती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड टूट गया है, ऊपर से गिरा स्पाइनल कॉर्ड टूट गया एंड शो तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल शॉक में सेंसरी लॉस, मोटर लॉस, ऑटोनॉमिक लॉस, ये सब हो जाते हैं। इट शोज एब्सेंस ऑफ मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स, सो रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन भरता रहता है, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स होती नहीं। और जब बहुत ज्यादा ब्लैडर भर जाता है तो बूंद बूंद करके वो बाहर ओवरफ्लो इनकंटिन्यूस हो जाता है। तो दैट इज नॉट द एटोनिक ब्लेडर, इसमें टोन खत्म हो गई है ब्लेडर की। नेक्स्ट था ऑटोमेटिक ब्लेडर। ये क्या है? इट इज फाउंड द सेकंड स्टेज, रिकवरी स्टेज आफ्टर कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज में जब रिकवरी होती है तो कुछ चीजें वापस आने लगती है, कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स भी वापस आ जाती है। ये है कंप्लीट ट्रांसेक्शन स्पाइनल कॉर्ड एबव द सैक्रल सेगमेंट्स वेयर मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स रिटर्न्स, बट जो कंट्रोल हायर सेंटर्स कंट्रोल है वो अभी भी नहीं डेवलप हुआ है। बट एब्सेंस ऑफ इनहिबिशन और फैसिलिटेशन ऑफ मिक्सचुरेशन बाय हायर सेंटर्स, वो कंट्रोल नहीं है, तो इट शोज लैक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्सचुरेशन विद यूरिनरी इनकंटिन्यूस। तो वो रोक नहीं पाता है, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स तो डेवलप हो गई है और यूरिन में ब्लैडर भर जाता है, और जब लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, अपने आप से यूरिन बाहर निकल आता है। तो दैट इज ऑटोमेटिक, ब्लेडर भरता रहेगा और ऑटोमेटिकली मिक्सचुरेशन होता रहेगा। फोर्थ था अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लेडर। अनइनहिबिटेड, इसमें कोई इनहिबिशन है ही नहीं। फाउंड इन द इंजरी ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम, पर्टिकुलरली मिड ब्रेन, विच रिजल्ट इन द फ्रीक्वेंट एंड अनकंट्रोलेबल मिक्सचुरेशन। इसमें क्या है, थोड़ा सा भी यूरिन आया, फौरन मिक्सचुरेशन हो गया, तो फ्रीक्वेंट मिक्सचुरेशन होता रहता है। Due to continuous excitation of spinal micturition centers, even a small quantity of urine in the bladder will elicit the micturition reflex। थोड़ा सा यूरिन हुआ और फौरन मिक्सचुरेशन हो गया, बार बार होता रहता है। दैट इज अनइनहिबिटेड। चारों तरह के एबनॉर्मल ब्लैडर आपके सामने डिस्कस हो गए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। 10th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें भी हम चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। व्हेन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एंड लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, द pupil इज नोन एज आर्जिल रॉबर्टसन pupil, या रिवर्स और इनवर्स आर्जिल रॉबर्टसन pupil, या एडिस pupil, या मार्कस गन pupil। ये एबनॉर्मल pupils हैं, जैसे वो एबनॉर्मल ब्लेडर्स थे चार। यहाँ पे हम चार एबनॉर्मल pupil लिख रहे हैं। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है वो भी डिस्कस करेंगे और ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो हियर इज द आंसर, आर्जिल रॉबर्टसन pupil। एक्सप्लेनेशन क्या है? आर्जिल रॉबर्टसन, ए आर पी। तो ए आर, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी ए आर है, तो ये वो कंडीशन जहाँ पे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगी। ए आर तो याद करने का आसान तरीका है, दीज आर स्मॉल, स्मॉल इज इंपॉर्टेंट, स्मॉल पीपल हो जाती है इरेगुलरली शेप पीपल इन विच एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, यानी दीज पीपल्स कंस्ट्रिक्ट ब्रिस्कली व्हेन फोकसिंग ऑन द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। दूर रहे देख रहा है पर्सन और जैसे करीब देखेगा तो नियर विजन के लिए वो प्रेजेंट है, वो देख सकता है। कन्वर्जेंस भी हो रही है, मीडियल रेक्टस प्रेजेंट है, पीपल कंस्ट्रिक्टर मसल भी है, पीपल कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्ट भी कर रही है, लेंस भी के भी चेंजेस नॉर्मल हो रहे हैं। तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है बट लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। तेज लाइट डालें तो पीपल कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही है। तो बाहर निकलकर धूप में, गर्मी में जब आदमी बाहर निकलता है कमरे से और तेज धूप है तो उसको बड़ी परेशानी पड़ती है। तो लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, दैट इज
It shows very little or no constriction when exposed to the light. These are usually seen in the neurosyphilis, also may be seen in diabetic neuropathy. तो accommodation reflex present है आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल. इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स आर इनवर्स आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल IARP. Condition reverse, here accommodation reflex is absent, but light reflex is present. These are seen in bilateral damage of frontal lobe, particularly midbrain, frontal lobe, and also in the midbrain, and also in the botulism, जो कि एक food poisoning है, which is caused by potent toxin of the bacteria called Clostridium botulinum. इस botulism में फूड पॉइजनिंग भी हो रही है और साथ साथ पैरालिसिस भी हो जाती है. और इट आल्सो सीन इन बर्किट्स लिम्फोमा. बर्किट्स लिम्फोमा क्या है? A rare and aggressive form of non-Hodgkin lymphoma that affects B lymphocytes. B lymphocytes डैमेज होने लगते हैं, जो कि एंटीबॉडीज बना के इन्फेक्शन से फाइट करते हैं. तो ये रिवर्स इनवर्स आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल है. यहाँ पे फ्रंटल लोब या मिड ब्रेन या बॉटलिज्म या ब्रॉन्कियस लिम्फोमा, ये अगर डैमेज हो गए हैं तो इन सब कंडीशन में ये पीपल मिल रही है. तीसरी पीपल थी एडीज पीपल. ये भी एबनॉर्मल पीपल्स हैं. दीज आर टोनिकली डायलेटेड पीपल. पीपल डायलेट रह रही है. विच शो स्लो रेस्पॉन्स टू लाइट रिफ्लेक्स. लाइट डाला आपने बहुत स्लोली कंस्ट्रिक्ट करेगी, बट शो डेफिनेट रेस्पॉन्स टू एकोमोडेशन. नियर विजन बहुत सही है इसका. तो लाइट रिफ्लेक्स बहुत स्लो है. तो दीज आर सीन द एडी सिंड्रोम, इस वजह से एडिस पीपल कहा गया है. ये होम्स एडी सिंड्रोम, ये सिंड्रोम जो है इट इज फ्रीक्वेंटली सीन द फीमेल्स with absent knee and ankle jerk and impaired sweating. This is Eddy syndrome. चौथी abnormal pupil थी Marcus Gunn pupil. These show accommodation reflex like Argyll Robertson pupil. की तरह accommodation reflex present है, but pupils are not smaller. जबकि Argyll Robertson pupil में small pupil हो जा रही है. They are not smaller. दूसरी चीज यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है. यहाँ पे क्या होता है? पीपल शो डिफरेंट लाइट रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स. When exposed to bright light, then it constricts. But when it is exposed to the less light, it becomes bigger, yani dilate. These are seen when there is problem in the retina or optic nerve. ये चारों तरह की abnormal pupils हमने आपको डिस्कस कर ली हैं. तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज नहीं है. इसके चार ऑप्शन, तो 40 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए. अगर आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपके 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एमसीक्यूज के लिए. तो आपको कैसा लगा, जरूर आप फीडबैक दीजिए. आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप इसे पढ़ेंगे तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. खुश रहिए और पढ़ते रहिए, सक्सेसफुल रहिए. थैंक यू वेरी मच.